Welcome to my channel. So this is the sixth number video in this compaction series. So if in case you didn't watch the previous 5 video, you find there is some I button and you find the all video, or you can go to the playlist section where you find the compaction playlist and you can see the all 5 videos. So today I discuss about effect of compaction. Okay, last video I talk about the effect, which parameter can affect the compaction. So in this video we can talk about the effect of compaction. Okay, so hopefully in this video you can learn something new. So without further delay, let's get started. Oh, by the way, I am Soumyadeep Hallar, IGBC AP qualified. I am 6 Sigma Green Belt and get 19 qualified, and I am an Aquarian. That is 19 to 21. Okay, so let's talk about effect of compaction. First, we talk about our parameter. So, what parameter are responsible for the effect of compaction? First is the soil structure. Okay. Second is permeability. Then is shrinkage. Then swelling. Then pore pressure. Then compressibility. And then stress strain characteristic. And last, not the least, shear strength. Okay. So before starting this video, I talked about four terminology. Four terminology. Terminology. Okay. What are that? Okay, by the way, I talk about eight all these eight parameters. So maybe video will get longer, so keep patience, and if you are thinking you can learn something new, then stay with this video. Okay, so yeah, back to the terminology. First terminology should be dry optimum. Dry optimum. What is dry optimum? Because the 8 parameters are depend on that fourth term. So if we know that fourth term, that will be helpful for understanding this video. One is dry optimum. Another is what? Wet of optimum. Okay, dry optimum, wet of optimum. Third is flocculate structure. And fourth is dispersed structure. Okay. So one by one we can understand that these four terminology. First, before understanding the dry optimum and wet optimum, first we have to can draw the compaction graph. This is our water content and this is our row dry. Okay. So I can say this is the top point. That means optimum moisture content. Okay. This is optimum moisture content. So if this is your optimum moisture content, so just below this, मान लो ये एक पॉइंट आपने ले लिया, so this point is A.
This A is before OMC, then that A point should be dry optimum. So in this A point, if you find a water content WA, and WA is your dry optimum water content, and definitely corresponding to A point you find a road dry A point, that density should be density corresponding to dry optimum. I think dry optimum will be clear. Next we talk about the wet of optimum. What is wet of optimum? Suppose I take about this point, B point. That B point is just after the OMC. Then corresponding to this is the water content, that should be WB. Then this WB corresponding this B point is water content of wet of optimum. And definitely I can say, if you plot here, we can find another rho B. That rho B density is corresponding to weight of optimum density. Okay, I hope that concept is clear. I hope, but still maybe you have some doubt, maybe you have doubt. Just do a small work, comment, right? Just do comment in comment section. I will definitely get back to you. It's my responsibility. So I hope dry optimum, weight of optimum is understood. Okay. Now we talk about flocculant. Acha, before starting the flocculant and disperse, I want to say something. Flocculant and disperse के बारे में मैंने डिटेल वीडियो में बनाया. अब मेरा प्लेलिस्ट पे जाओ. प्लेलिस्ट के जाने के बाद सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरोलॉजी के ऊपर एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा. उसके अंदर पूरा का पूरा सब कुछ वीडियो है, आप देख सकते हो. Anyway, back to flocculant. Flocculant structure is something like that. And dispersed structure is like that, parallel orientation. This is dispersed. They are more stable. And they are H to H, and they are face to H. They are parallel. So that's the flocculant and dispersed. Okay. Now we talk about one by one is parameter. First, the soil structure. Soil structure is broadly, जिन्हें soil structure में क्या क्या आता है. एक तो आपको आता है वो क्या, उसको क्या कहता है, उसको कहता है सिंगल ग्रेन. उसके बाद आता है आपका हानी कॉम्बिंग. उसके बाद आता है आपका मैट्रिक्स फॉर्मेशन. देन आपको आता है जनरली फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर. देन आता है आपको डिस्पर्स स्ट्रक्चर. तो वी टॉक अबाउट ब्रॉडली द बेसिस ऑफ फ्लॉकुलेंट एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर. देखो चीज क्या होता है. तो ये पिक्चर में ये आपका आ गया ऑप्टिमम ड्राइव. ठीक है. तो यहाँ पे क्या चीज है, देखो ये आपका हाई कंपैक्टिव इक्वड है. ओके, तो ये आपका क्या है, यह है OMC. ठीक है. तो OMC के पहले मतलब ड्राई ऑप्टिमम में, तो सॉइल ड्राई ऑप्टिमम में क्या रहता है, फ्लॉकुलेंट रहता है. एंड सॉइल वेट ऑप्टिमम में क्या रहता है, डिस्पर्स रहता है. सेम चीज यहाँ पे भी होता है, सेम चीज यहाँ पे भी होता है. देखो इसके लिए देखो, ये आपका हो गया, आपका OMC हो गया.
और OMC के पहले ये पूरा का पूरा रेंज क्या रहता है, ड्राई ऑप्टिमम में फ्लोकुलेंट रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे पूरा का पूरा रहता है आपका, वो आपका डिस्पर्स रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ सकता है OMC के पहले सॉइल क्या रहता है, फ्लोकुलेंट, OMC के बाद सॉइल क्या रहता है, डिस्पर्स। तो ये MCQ आपको आ सकता है, गेट लेवल में डेफिनेटली आएंगे। सो दैट हम ये कह सकते हैं कंपैक्शन के लिए मतलब ये कंपैक्शन में क्या होता है ना, कोई फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर सॉइल डिस्पर्स सॉइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप मेरा वो फ्लोकुलेंट डिस्पर्स का जो वीडियो मैंने बनाया था वो आप देखोगे तो मैं वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, फ्लोकुलेंट टू डिस्पर्स ये जो चेंज होता है इसके लिए कंपैक्शन as well as consolidation both are very much important। ठीक है, तो ये तो सॉइल स्ट्रक्चर हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट द परमिएबिलिटी। पहले तो चीज बताओ परमिएबिलिटी होता क्या है, उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय परमिएबिलिटी? permeable, something like that, permit, allow. So permeability is allow to flow of water, simple सी बात है, through soil, सिंपल सी बात है, थ्रू सॉइल, राइट। तो अब हम देखेंगे क्या चीज है। मैंने कहा था ये पूरा का पूरा चीज चार चीजों के अंदर अंत है। एक आपका हो गया ड्राई ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। एक हो गया आपका वेट ऑफ ऑप्टिमम, एक हो गया फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर, एक हो गया डिस्पर्स स्ट्रक्चर, राइट। तो भाई एक चीज बताओ, मैं फिर ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूं जैसे कि आपको यू कैन अंडरस्टैंड वेरी मच वेल। थोड़ा टाइम, थोड़ा इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। ये आपका हो गया ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो एक चीज बताओ सर, ये जो पोर्शन है यहाँ पे सॉइल क्या है, आप बताओ यहाँ पे सॉइल क्या है। सर सिंपल सी बात है, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे सॉइल क्या है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर है सर। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर का पिक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा ऐसा होता है फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर का। और डिस्पर्स का पिक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। सही बोल रहा हूँ ना। अब सर मुझे ये चीज बताओ, सर फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में वॉइड रेशियो मतलब क्या है, दैट इज इक्वल टू वी एस। तो फ्लोकुलेंट में वॉइड ज्यादा होगा कम होगा ना, डिस्पर्स में वॉइड ज्यादा होगा कम होगा, सिंपल सी बात है सर। फ्लोकुलेंट में
वॉइड क्या होगा, ज्यादा होगा, डिस्पर्सन वॉइड कम होगा। अगर अगर अच्छे से समझो सर, ये चीज बुक में नहीं मिलेगा। वॉइड रेशियो ज्यादा है, वाटर ज्यादा फ्लो करेगा, और वाटर ज्यादा फ्लो करेंगे तो परमिएबिलिटी क्या होगा, ज्यादा है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो क्या है ना, वॉइड रेशियो रिड्यूसिंग मतलब कम है, तो वाटर क्या होगा, कम पास करेंगे ना। सिंपल सा बात है, अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो कहाँ से फ्लो करेंगे भाई, ये तो बताओ मुझे। तो बात तो ये होगा, तो देन परमिएबिलिटी भी कम होगा। सो हम ये कह सकता है, अगर हम कंपैक्शन करेंगे, कंपैक्शन करने के बाद क्या होता है, परमिएबिलिटी रिड्यूस होता है। तो ये अच्छा है ना बुरा है कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग के लिए। अगर आपने कुछ बिल्डिंग किया, उसके जो सॉइल है वो कॉम्पैक्टेड नहीं है, तो मान लो यहाँ पे आप कुछ फाउंडेशन किया है, सेटल हो जाएंगे ना। तो इट इज बेटर टू डू कंपैक्शन, reducing your void and reducing your permeability, then that should be more stable. I hope that is clear for you, right? But still, if you have any kind of doubt, do comment sir, do comment. अगर अच्छा लग रहा है तो बस लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है, और ऐसा वीडियो मिलने के लिए सब्सक्राइब कर दो। एनीवे, नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट चीज, श्रिंकेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे श्रिंकेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले उसका इंक चेंज करना, मुझे पता नहीं क्यों चेंज हो जाता है। सर एक चीज बताओ सर, श्रिंकेज का मतलब क्या है? अगर मतलब आपको समझ, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द मतलब, आई मीन द मीनिंग, देन एवरीथिंग इज इजी। ये जो वर्ड है श्रिंक, भाई श्रिंक कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन श्रिंक? श्रिंक का मतलब सर यही होता है, ये मान लो कुछ पार्टिकल है, ये क्लोज टू ईच अदर हो रहा है, मतलब छोटा हो जा रहा है, स्मॉलर हो रहा है, इसका मतलब होता है श्रिंकेज। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे श्रिंक कैसे होता है, ठीक है। मुझे पिक्चर ड्रॉ करने दो, तब मजा आएंगे, नहीं तो मजा नहीं आएंगे। मैं कहा था, पूरा का पूरा चीज 4 वाट के अंदर, पूरा का पूरा चीज 4 वाट के अंदर छुपा है, और वो छुपे हुआ चीज हमको डिस्क्लोज करना है आपके सामने में, और चीजें को आपको क्या करना है, इजी बनाना है, ठीक है। तो सर, और मैंने थोड़ा इंक चेंज कर ले रहा हूँ, और ये मेरा रेड, ओके सर। दैट इज योर ओएमसी। ये तो आपको पता है, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर, ये हो गया डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर का पिक्चर कैसा होता है, मैं लास्ट में भी ड्रॉ किया था, ऐसा कुछ होता है। ऐसा होता है ना, व्हाइट डिस्पर्स का पिक्चर कैसा होता है, डिस्पर्स का पिक्चर ऐसा होता है, शांत जैसा, भोले वाला, टू मच एफिशिएंस, और गुड बॉय जैसा। एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, फ्लोकुलेंट एंड डिस्पर्स, ये दोनों के अंदर कौन ज्यादा एक्सपैंड नेचर में है, कौन ज्यादा फैल गया है, और कौन ज्यादा एफिशिएंसी मैनर पे है? डेफिनेटली फ्लोकुलेंट। और ज्यादा एक्सपेंस मतलब क्या बोलूं, क्लोज टू ईच अदर है, एफिशिएंसी मैनर में कौन है, वो है आपका डिस्पर्स। दैट मीन्स सेम सॉइल, सेम सॉइल मास, मान लो इमेज सॉइल मास है 10 ग्राम्स, अगर ये 10 ग्राम सॉइल का वॉल्यूम मान लो
कुछ है, इस तरफ आपको 20 ग्राम्स 20 सीसी है और ये फ्लॉकुलेट है। तो इसको आप क्या किया, अच्छे से कॉम्पैक्ट किया, अच्छे से कॉम्पैक्ट किया, अच्छे से कॉम्पैक्ट किया। इसके बाद जैसे ही ये डिस्पर्स बन गया, देखिए मास कंजर्वेशन लो होगा, इस मास तो 10 ग्राम ही रहेंगे, बट वॉल्यूम क्या हो गया, पहले 20 ग्राम था, 20 सीसी था, ये 20 सीसी था, अभी मान लिया हो गया 15 सीसी। क्यों हो गया, क्यों हो गया, पूछो खुद से, पूछो क्यों हो गया ऐसा। बिकॉज सर they are parallel to each other and they are very close to each other, sir, they are very close to each other, they are very close to each other, इसीलिए they are taking a small space, मतलब वो लोग स्मॉलर हो गया पहले कंपेयर टू पहले। तो इसका मतलब हो गया ये श्रिंक हो गया, ये श्रिंक कर गया। सो दैट शुड बी अ इफेक्ट ऑफ द कंपैक्शन। सो हम कंपैक्शन क्यों करते हैं भाई साहब, कंपैक्शन क्यों करते हैं, बिकॉज एक्सपेंसिव जो सॉइल रहता है उसको हम श्रिंक करके डेंसिफाई करते हैं, डेंसिफाई करते हैं। कंपैक्शन में डेंसिफाई करते हैं, कंसोलिडेशन में भी और ज्यादा डेंसिफाई करते हैं। समझ आया कैसे श्रिंक हो रहा है, कैसे श्रिंक हो रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। चलो बढ़िया बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वेलिंग के बारे में। स्वेलिंग, स्वेलिंग का क्या स्टोरी है, सेम स्टोरी है भैया। श्रिंक स्वेल, अच्छा पहले ये तो बताओ सर स्वेलिंग होता क्या है। स्वेलिंग मतलब एक्सपैंड कर गया। इस पिक्चर में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी मैं बोला था ना फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो एक्सपैंड नेचर का होता है, मतलब इंडिरेक्ट में कह दिया वो स्वेलिंग स्वेल करता है। और ये जो डिस्पर्स स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, क्लोज टू ईच अदर, तो मतलब ये श्रिंक होता है, ठीक है। तो अगर स्वेल ज्यादा करता है तो स्वेलिंग प्रेशर भी ज्यादा होगा, बट ये श्रिंक करता है तो इसमें स्वेलिंग प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों होता है, बिकॉज ये ड्राई जो ऑप्टिमम रहता है यहाँ पे क्या होता है, पानी रहता है, पानी का डिफिशियंसी रहता है, इसलिए स्वेलिंग प्रेशर ज्यादा रहता है। यहाँ पे तो पानी पानी रहता है तो उतना डिफिशियंसी नहीं रहता है, तो स्वेलिंग प्रेशर का उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। हाँ आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, पिक्चर वैसे ऐसे ही होगा अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो। These are swelling and these are shrink, shrinkage, बस सिंपल सी बात है। नाउ वी टॉक अबाउट द पोर वाटर प्रेशर। अच्छा पोर वाटर प्रेशर सर चीज क्या होता है सर, सर याद आ रहा है सर इफेक्टिव, मैंने इसीलिए कहा सर सॉइल मैकेनिक्स का जो चैप्टर होता है सर वो सर पहले ही 2-3 चैप्टर के अंदर ही खत्म हो जाता है, उसके बाद पूरा लिंकिंग है सर। पोर वाटर वही होता है सर, मान लो ये आपका सॉइल है और ये आपका ड्राई सॉइल है, रो ड्राई। यहाँ पे आपका क्या हो गया, वाटर टेबल है तो यहाँ पे रो सैचुरेशन होगा, तो यहाँ पे वाटर टेबल है इसलिए एक क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर रिड्यूस होंगे। तो यहाँ से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रहता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ये हम यू से कहता है। तो दैट इज द पोर वाटर प्रेशर। अब एक चीज मुझे बताओ, पोर वाटर प्रेशर कब होता है, पोर वाटर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा जहाँ पे वाटर ज्यादा है, सिंपल सी बात है सर, राइट। ऐसा तो कभी नहीं होगा सर, सर मैं बोल रहा हूँ पोर वाटर प्रेशर तब ज्यादा होगा जब वाटर कम होगा, ऐसा कभी होगा नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा। ऐसा ही होता है जनरली, पोर वाटर प्रेशर तब ज्यादा होता है जहाँ पे वाटर ज्यादा रहता है, सिंपल सी बात है। ये पिक्चर यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना जरूरी है।
चीज क्या है, जब सॉइल यहाँ पे है, सॉइल 3 फेज सिस्टम, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहा हूँ, एयर बाहर जा रहा है और पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा सॉइल सैचुरेटेड हो जा रहा है। तो मान लो ये 20 ग्राम, ये 20 ग्राम, ये 20 ग्राम। अब क्या हो रहा है, अब 21 को 21 किया, ये हो गया 19 हो गया, मतलब ये एयर या वाटर। फिर 22 हो गया, ये 18 हो गया। ऐसे करके क्या होगा, ये हो गया 40 हो जाएगा, सॉरी 39 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे, उसके बाद ये 40 हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लो 41 किया तभी भी ये 0 होगा, ये 42 कर दिया तभी भी ये 0 रहेंगे, राइट। तो दैट इज द पॉइंट जहाँ पे ये 40 ग्राम वाटर आ गया बट 0 ग्राम आपका वो है, एयर है। और इसके पहले क्या है, 39 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम एयर है, इसके बाद 38, ऐसे ऐसे। तो हम ये कह सकते हैं ना, मतलब ये जो रेंज है, दिस रेंज, ये रेंज में पानी कम है रिलेटेड टू दिस ओएमसी। अगर पानी अगर कम है तो वाटर प्रेशर डेफिनेटली कम होगा। और यहाँ पे क्या है, ये तो पूरा सैचुरेट बन गया, ओवर सैचुरेट हो गया, तो पानी ज्यादा है तो पोर वाटर प्रेशर ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है सर, ठीक है ना। तो ऐसे ये भी हम कह सकते हैं, ये बुक में नहीं है, ये भी कह सकते हैं सर, अगर सर पोर वाटर प्रेशर कम है, इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा है, पोर वाटर प्रेशर ज्यादा है, इफेक्टिव प्रेशर कम है, बिकॉज वी नो दैट इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अब मान लो ये है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 10 है, तो ये क्या होगा, 90 होगा पोर वाटर प्रेशर। और मान लो ये 100 है, तो ये ज्यादा हो गया, 40 हो गया, तो ये क्या 60 हो गया। तो देखो भाई, जब डिस्पर्स तो हो रहा है तो वहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस भी रिड्यूस हो रहा है, एंड फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे लिंकअप करके आपको पढ़ना चाहिए, तभी मजा आएंगे सर, नहीं तो पूरा का पूरा बोर हो जाओगे। तो सही मैं बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया, बट स्टिल इफ यू हैव सम डाउट डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। मैं इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। नाउ वी टॉक अबाउट कंप्रेसिबिलिटी। बिफोर टॉकिंग अबाउट कंप्रेसिबिलिटी, ये क्या चीज है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं इसके बाद ही कंप्रेशन स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट जगह, तब मैं बताऊंगा। तो इसके दो चीज है, तो दो कैटेगरीज है। एक तो है आपका लो प्रेशर रेंज, और ये क्या है बताओ मुझे, हाई प्रेशर रेंज। तो हाई प्रेशर रेंज में वेट ऑफ ऑप्टिमम में ज्यादा कंप्रेस होता है, और लो प्रेशर जोन में क्या होता है ड्राई ऑप्टिमम में ज्यादा कंप्रेस होता है। सिंपल सी बात है सर, बात सिंपल है। क्यों सर, अब बताओ सर, ड्राई ऑप्टिमम एयर अवेलेबल है, अब थोड़ा कंप्रेस कर रहे हो तो लो प्रेशर दे रहे हो तो वो कंप्रेस हो रहा है। हाई प्रेशर में क्या है, एयर नहीं है, क्या है वाटर है, और क्या है सॉइल सॉलिड है, तो ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा ना उसको कंप्रेस करने के लिए। बात सिंपल सी है। इसके बाद है स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक। देखिएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेन मतलब क्या होता है, डेल एल बाई एल, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल कैरेक्टरिस्टिक। स्ट्रेस को क्या होता है ना, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए, दैट पी व्हाट इज दैट पी ना, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो चलो देखते हैं। ये होता है आपका ड्राई साइड, ये होता है वेट साइड। ड्राई साइड में क्या है, ड्राई साइड का देखो, तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और अगर मैं यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूं, हम कह सकते हैं दीज जो एंगल, ये होता है इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ ड्राई साइड एंड
ये वेट साइड का, दैट इज आवर वेट साइड, वेट साइड का है दिस। E weight side. Definitely EDS greater than Q, because we know that sigma proportional to E into epsilon. Then that is equal to sigma by epsilon equal to E. तो ये यहाँ पे सिग्मा भी आता है एंड E बोथ आर कांस्टेंट, यहाँ पे सिग्मा कम है, तो दैट इज वाई हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी स्ट्रेस स्ट्रेन में ज्यादा है। एंड वी कैन से जो ड्राई साइड होता है यहाँ पे डिफॉर्मेशन भी होता है, बट वेट साइड में क्या होता है, ब्रिटल फेलियर होता है सर, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटल फेलियर होता है। ये यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है वेट ऑफ ऑप्टिमम का फेलियर कैसा होता है, ब्रिटल फेलियर। एंड ड्राई ऑप्टिमम क्या होता है सर, उल्टा डक्टाइल फेलियर, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। अच्छा, शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के बारे में पहले तो ये मुझे कहना है जे टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई। तो यहाँ पे दिस वैल्यू इज सी ड्राई साइड and this value is C equation wet side. This is the phi dry side, this is the phi wet side. Okay, तो पिक्चर से हम कह सकते हैं ड्राई साइड में शियर स्ट्रेस ज्यादा है एंड वेट साइड में शियर स्ट्रेस कम है, ठीक है। बट देयर इज सम बट, अगर हम सेटलमेंट को कंसीडर करेंगे देन वी प्रेफर द वेट साइड। इसीलिए जब कोई डैम बनता है तो वहाँ पे हम सॉइल को, उसका जो कोर होता है उसको अच्छे से कंपैक्ट करते हैं। अगर अच्छे से हम कंपैक्ट करेंगे तो सॉइल क्या हो गया, डिस्पर्स हो जाएंगे। डिस्पर्स हो जाने के मतलब वही पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनिशियल शियर स्ट्रेन तो ले सकते हैं, बट इनिशियल शियर स्ट्रेन अगर लो भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बट दे आर टेकिंग द settlement. Okay, so that is all about our the video where I talk about the effect of compaction, where I discuss very detail the 8 parameter: first soil structure, then permeability, then shrinkage, then swelling, then pore water pressure, then compressibility, then stress strain characteristic, then shear strain. So guys, if there any kind of doubt, definitely do comment. I will definitely get back to you. अगर you are thinking you learned 1%, definitely like the video, नहीं तो dislike the video, okay, कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको लगा ये सही है, वीडियो सही है, तो शेयर कीजिए दोस्त के साथ। अगर ऐसा वीडियो और ज्यादा देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करो किस चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Okay, thank you for watching this video.